দিবে যে আরে আমি একটা কোশ্চেন ধরতে পেরেছি, আমি একটা এক্সামিনেশন জিনিসটাকে দেখতে পারলাম। এটা আমাদের আরো বেশি ইমপ্রুভ হয়েছে স্পেশালি আরবিটিক টাইমে। অন্য সময় টিপিপি করলে হয় কি কম বেশি সবগুলোতে সেম টাইপের কোশ্চেন, একদম একদম হ্যাঁ। মানে যেটা একটা ইম্পর্টেন্ট বলতে পিওয়াইকিউ থাকে। আর এরপরে ম্যাম আমাদেরকে বলেছে যে সাধারণত পিওয়াইকিউটা থেকেও ইমপ্রুভ করে কোশ্চেন আসতে পারে। আসে হ্যাঁ, তো আসতে পারে, তো এটার জন্য আমরা আরো ইন ডেপথ একটা বুঝতে পারতাম। হ্যাঁ আরবিটির তো ডিফারেন্ট ইয়ে আছে, স্টেজ 1 আর স্টেজ 2, যেটা আমি প্রিভিয়াসলি ডিসকাস করেছিলাম যে স্টেজ 1 এর কাম হচ্ছে যে তুমি এটা তো সিলেবাসটা শেষ করো, স্টেজ 2 এর কাজ হচ্ছে যে তুমি কেমনে করে জিনিসটা মানে তোমার মার্কস ইমপ্রুভ করা। তো আরবিটির ব্যাপারে কেমন, আরবিটি জিনিসটা কি প্রচন্ড ওয়েল, যেহেতু মানে আমি বলবো ওয়েল ইঞ্জিনিয়ার, আমরা যেহেতু মেডিকেল স্টুডেন্ট হতে পারি, বাট আরবিটি ইজ ভেরি ওয়েল ইঞ্জিনিয়ার। জিনিসটা কি তোমার প্রতি বছর তুমি আরবিটি তুমি যদি মানে কোনো অ্যাক্সেস যদি কারোর কাছে থাকে, প্রতি বছর আরবিটি কিন্তু প্যাটার্ন বদলাচ্ছে। এমন না যে এই বছরে এই কোশ্চেন সেম কোশ্চেন না, হ্যাঁ 2019 এ আরবিটি প্যাটার্ন একটা ছিল, 24 এর প্যাটার্নটা এমন না, একদম না। কোশ্চেন মানে এটাই ট্রেন্ড জানলে করা বদলাচ্ছে, আরবিটিরও কিন্তু প্যাটার্নটা সেভাবে বদলাচ্ছে। মানে আমি তো 6th মেতে যে মানে ইন্টারভিউটা যেটা এসেছিল এটাতে সেম কথা বলছি যে আমি যখন নিট এক্সামটা দিয়ে এসেছি, আসার পরে আমি তো স্যারকে ফোন করে প্রথমে ফোন করলাম যে স্যার তো পুরো আরবিটি লাগলো আমার পুরো। মানে দেওয়ার পরে আরবিটি, কারণ আরবিটির প্যাটার্নটা এমনই ছিল যে ম্যাট্রিক্স ম্যাচিং, পুরো ম্যাট্রিক্স ম্যাচিং আসছে, ট্রু ফলস আসছে, স্টেটমেন্ট বেসড আসছে, এমনকি কতগুলো রেডিও অ্যাক্টিভিটিরও যে একটা কোশ্চেন ছিল না মানে আমাদের কম বেশি নোন ছিল। কেন? known ছিল। এটার জন্য স্যারের ক্রিয়েটিভিটি যায়, স্যারের প্রেডিক্টিভিটি আসলে প্রচন্ড হাই একুরেট। স্যার মানে আমি এক্সাম দিচ্ছি, ওই একটা অপটিক্সে ছিল না স্যার, তুই ওই ক্লাসে ছিলি কিনা, মানে স্যার এরকম বলছে ये इम्पोर्टेंट है, यूने एनसीईआरटी से हटा दिया है फिर भी इम्पोर्टेंट है। আমি লিটারালি স্যারের ক্লাস দেখছি, মানে একদম চোখের সামনে ভাসছে যে মানে স্যার বলছে মানে এটা ইম্পর্টেন্ট এন্ড ইটস হিয়ার ইন দ্য एग्जाम, কোনো আরবিটি না, মেইন एग्जाम। তো মানে ওইটা ফিলিংটা আরেক রকম। टेस्ट कैसे मैनेज करते थे? टेस्ट कितना हेल्पफुल था आपके लिए? यहाँ के टेस्ट देते थे, सारे टेस्ट दिए आपने? हाँ, ऑलमोस्ट कभी टेस्ट मिस नहीं करते, टेस्ट कभी नहीं मिस करते थे। चाहे वो बायोलॉजी के श्रुतम हो, संभव हो, श्रुतम संभवम। अच्छा मुझे एक बात, वीकली टेस्ट हो या फिर जो रेगुलर होते हैं, एंड देन आफ्टर दैट द बिग बैंग इज लाइक कौन सा? आरबीटी। आप पहले सबसे पहले बताइए कि आरबीटी की स्पेशलिटी क्या है? आरबीटी की स्पेशलिटी है कि स्टैंडर्ड नीट क्वेश्चन, मतलब अगर आरबीटी टेस्ट आप सीरियसली देते हो तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसे सब लेवल का क्वेश्चन कवर होता है, इजी वंस, मीडियम वंस एंड टफ वंस, सब टाइप्स के क्वेश्चन, चाहे स्टेटमेंट हो, असर्शन हो, मैचिंग हो, सब हर एस्पेक्ट को कवर करता है। और ये टेस्ट अगर सही से दिया और सही से एनालाइज किया तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसमें हर स्टेज के लिए, मतलब ऐसे आरबीटी का 2 स्टेज है, बट एग्जाम के नीट एग्जाम के हर स्टेज के लिए आपको रेडी किया था इन दैट सेंस की क्वेश्चन आसान आएगा तब भी आपको स्कोर कर सकते हो, क्वेश्चन मीडियम आएगा तब भी स्कोर कर सकते हो, क्वेश्चन टफ आएगा तब भी स्कोर कर सकते हो। तो वो और हर आई मीन मोड के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया है, और डे बाई डे उसको हम लोग काफ़ी और भी इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी तो कंप्लीट एनसीईआरटी के पेजेस से उठा के क्वेश्चन से और वहाँ पे दे रहे हैं, नो इशू, एवरी ईयर एप्लीकेट होता है चीज़ें। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे आप बोल रहे थे ना, राइट? बट नंबर ऑफ टेस्ट रिसोर्सेज उठाना है कि किसी एक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, राइट? स्टैंडर्ड वंस एक दो तरह की टेस्ट से फोकस करना चाहिए, राइट, तो नहीं तो डाइवर्शन बहुत बढ़ जाएगा, डाइवर्शन बहुत बढ़ जाएगा, फिर पढ़ने का टाइम ही कम हो जाएगा, इससे क्या फायदा? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्होंने जो कहा है कि नंबर ऑफ आई मीन फोकस तो एक जगह रहना ही चाहिए जहाँ पे आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर टेस्ट दें, सो दैट कि आपको एनालाइज करने का मौका मिलेगा, अदरवाइज आपने टेस्ट और टेस्ट भी जो देना चाहिए रिलेवेंट होना चाहिए, और आरबीटी रिलेवेंट रहता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ओके, मींस आरबीटी नीट के काफ़ी रिलेवेंट टेस्ट है, रिलेवेंट है, बहुत रिलेवेंट है। गुड। और जो मंथली था वो तो एक पार्ट से स्टार्ट किया था धीरे धीरे, मतलब हम बोले थे आपको जो वीकली मंथली टेस्ट है वो प्रिपेयर करता है आपको इन टर्म्स ऑफ आपकी डेली पढ़ाई कैसे चल रही है, आप उस मंथ में कैसे पढ़ाई किए हो, उन सारे एनालिसिस, एंड देन फाइनली गोज टू द आरबीटी जो कि एकदम आपको लेके जाता है फ्लाई करा के कि यस। क्योंकि मैं आपको शॉकिंग होगी कि मैं आपको बताऊं कि आपके आरबीटी का भी एवरेज स्कोर वही था, याद है आपको? हाँ, 70-80 ऐसा ही कुछ। 80, 90, 690, 700 का भी गया है टेस्ट में, 75 भी गया है, राइट? लेकिन एवरेज उसी के स्कोर में थे। तो अल्टीमेट बच्चों का ऐसा हुआ है कि उसमें अगर आप एक पार्शियल मार्क्स को रखते हो, इन दैट केस आपको बहुत एनर्जी फील होगी कि यस
आप डॉक्टर बन ही जाओगे। राइट मैम, कुछ पूछ रहे हैं? मैं बोलूँगी कि आप जैसे आरबीटी दे रहे थे, क्लास 12th भी कर रहे थे, तो ये हमारे जूनियर बच्चे लोग को बताइए जो अभी आरबीटी हमारे यहाँ दे रहे हैं, वो कैसे इस चीज़ को करें? आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया था? आरबीटी के साथ साथ क्लासरूम, मंथली, संभव सारे टेस्ट को आप दे रहे थे, तो आरबीटी का रिवीजन आप कैसे करते थे प्रिपरेशन आरबीटी के लिए? देखिए, आरबीटी को अगर सब सीरियसली लेते तो 11th का रिवीजन उससे साथ साथ हो जाता है। तो इसके लिए मतलब 11th के लिए अगर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप आरबीटी को सीरियस लेते हैं। क्लास 12 में रहते रहते जो 11th रिवीजन होती है वो आरबीटी ऑटोमेटिकली आपको रिवाइज करा देता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट, बट उसके लिए भी जो आप बच्चे क्लास 11th के हैं, जो 2026 के बच्चे हैं, उनको तो अपने नॉर्मल टेस्ट पे फोकस करके रखना चाहिए, हाँ, बिल्कुल बहुत जो उनका वीकली मंथली टेस्ट आता है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एग्ज़ाम का जो 5th मई को एग्ज़ाम हुआ, उसके 7 डेज पहले तक का आपका जो पूरे सिलेबस को आपने किस तरीके से समराइज करके रिवाइज किया? मैम, मैं लास्ट के मतलब 7 7 डेज हो या 1 महीना हो, हाँ। मैंने क्या किया था, मैंने रिवीजन, मुझे क्या लगता था कि टेस्ट ग्रेटर देन रिवीजन, जो मैंने टेस्ट दिए थे ओके, उससे मतलब मुझे बहुत फायदे हुए। मैंने शायद लास्ट 2 मंथ्स में 80 से ज्यादा टेस्ट दिए, ओके, 70 to 80 टेस्ट दिए मैंने, तो मुझे टेस्ट से बहुत बेनिफिट हुआ। मतलब टेस्ट के जो क्वेश्चंस थे, ये कब हो सकते हैं? ये उस वक्त हो सकते हैं जब सिलेबस कवर हो प्रॉपर और इन डिटेल तरीके से कवर, राइट? जैसे हमारे आरबीटी में कितना टेस्ट है? ऑलमोस्ट 45 टेस्ट, राइट? उसके बाद पार्ट टेस्ट जो 2 स्टार होता है उसमें करीब 25-30 टेस्ट होता है। उसके बाद हम लोग ओपन करते हैं जिसको जितना टेस्ट देना दे दो। तो ये सब फैक्टर्स एक जगह पे आके, मतलब मैं अभी सबको बोलता हूँ कि एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन से टेस्ट का हो, राइट? तो आपने शुरू से पहले क्लासेस में टेस्ट दिया। यस मैम। श्रोतम संभव में तो आपका बहुत अच्छा पोजीशन रहता था, मैं देखती थी श्रोतम संभव मंथली और आपका RBT। आरबीटी। हाँ। तो पहले बिगनिंग्स में तो 3 टेस्ट होते हैं, हाँ। जब आरबीटी स्टार्ट हुआ तब आपने कैसे रिवीजन स्टार्ट किया? क्योंकि मुझे लगता है कि आरबीटी 2 फेज में डिवाइडेड होता है, आरबीटी स्टेज 1 और स्टेज 2। तो स्टेज 1 का जो मोटिव है वो मुझे लग रहा था कि वो सिलेबस कंप्लीशन के लिए था, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अब जो 12 में है उनका स्टेज 1 चल रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं कि टेस्ट में फुल मार्क्स लाने के लिए, टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए उनका सिलेबस में भी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि उनका बैकलॉग है। तो वो क्या कर रहे हैं, वन शॉट देख देख के, क्योंकि उनसे बात होता है, वो क्या कर रहे हैं, वन शॉट देख देख के आगे टेस्ट दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि वन शॉट तो तुमने देख लिया, लेकिन तुम्हारा सिलेबस और जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो दिमाग से चला जाएगा कि एक वन शॉट देके तुम्हें एक चैप्टर तुमने एक दिन में उड़ा लिया, वो कितने दिन तक रहेगा, टेस्ट खत्म होगा वो भी दिमाग से उड़ जाएगा। मेरा ये था कि अगर आरबीटी स्टेज 1 में अगर मेरा 6 चैप्टर है, मेरा 4 चैप्टर ही कंप्लीट हुआ है, मैंने वो 4 चैप्टर ही कंप्लीट रिवीजन किया और 2 चैप्टर जो भी क्वेश्चन है मैंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो वन शॉट देख के मैंने उसके आखिर कर लिया, लेकिन मुझे 2 महीने बाद उसका कुछ भी याद नहीं, तो मुझे वो एकदम इनफेक्टिव लग रहा था। तो स्टेज 1 में मुझे जो लगता है कि स्टेज 1 के साथ साथ तुम्हारा मोटिव ये होना चाहिए कि तुम सिलेबस कंप्लीट कर लो बाय द एंड ऑफ स्टेज 1। स्टेज 2 का जो मोटिव है उसमें है तुम्हारा मिस्टेक्स जो है उसको फाइंड करना और उसमें खुद का मार्क्स इंप्रूव करना है।